Hello friends. Now today we are started session number 6 chapter 4 Animal Kingdom. So now in this session we are discuss about division Ganthostomata in vertebrates and studied about superclasses Pisces. So now subphylum Vertebrata. So in the last section we are studied about the vertebrata. So now in vertebrata there are two divisions, Agnatha and Ganthostomata. So once again I will repeat, vertebrata में कितने division है? Agnatha and Ganthostomata. So Agnatha include only one class, Cyclostomata, while Ganthostomata include two super classes, Pisces and Tetrapoda. So now division Agnatha. In the last session we are already studied about this division Agnatha include only one class, Cyclostomata. इसमें एक ही class है. Now this Cyclostomata include the animals which are ectoparasitic, okay, and fish like animals. These are the fish like animals, but they are not fishes, they are ectoparasitic animals. Now presence of 5 to 15 gill slits. The mouth is a circular and only sucking type without jaw, so they are jawless animals, okay, devoid of scales. Scales are absent. So these are the division of Agnatha. So already we are studied in the last lecture. These are the Petromyzon. Example is Petromyzon. Okay, so now in next classes Ganthostomata. Today we are studied about Pisces and Pisces, only Pisces. So Pisces include two class, Chondrichids and Osteichthyes. Pisces means all they are fishes. They bears fin, जिसको fins रहते हैं, they are fishes. तो Pisces में क्या क्या आएगा आज? Class Chondrichids and class Osteichthyes. So now the first class Chondrichids. आपको नीचे डायग्राम दिख रही होगी. So these are the shark. आपको शार्क दिखाई देगा. शार्क के बहुत सारे टाइप्स है. टाइगर शार्क है, बुल शार्क है, हैमर हेड शार्क है. So these are the example of Chondrichids. So now in the Chondrichids are exclusively marine. Chondrichids जो है sharks exclusively marine है, मगर very few are fresh water. ज़्यादा सबसे ज़्यादा कौन से हैं? एक्सक्लूसिव मराइन, मगर कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो फ्रेश वाटर है. नाउ इन दिस कॉन्ड्रिचिड्स, आप लोग शार्क में देखोगे माउथ इज अ वेंट्रल साइड. अब इसका जो माउथ है, माउथ वेंट्रल साइड नीचे की तरफ है. ओके, और नॉर्मली दूसरे फिशेज हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रिचिड्स में, उसका माउथ टर्मिनली प्रेजेंट है, आगे रहता है, मगर इसका माउथ नीचे रहता है. तो आप लोग शार्क से अच्छी तरह से देख सकते हो. द माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली. सो नाउ the vertebral column is present. Now this vertebral column, the notochord is present throughout the life and it is made up of cartilage. किससे बना है? Vertebral column is made up of cartilage. So first difference क्या है इसका? They are exclusively marine, very few are fresh water. Okay, mouth situated ventral side. Mouth कहाँ पे present है? Ventral side. And notochord is present, persists throughout the life. So notochord is replaced by the vertebral column, and this vertebral column made up of cartilage. So now these chondrichids, the sharks, having 5 to 7 pairs of gills. इस शार्क में गिल्स कितने रहते हो टोटल? 5 to 7 pairs. ये डायग्राम में क्लियर नहीं दिख रहे आपको, बट नाउ दिस गिल्स कितने हैं? 5 to 7 pairs. नाउ स्किन हैविंग प्लेकॉइड स्केल. कभी भी आप शार्क को हाथ पड़ोगे तो ये आपको रफ पाए जाओगे, रफ लगेगा आपको. रीज़न क्या है? द शार्क जो बॉडी है हैविंग अ प्लेकॉइड स्केल, इसके ऊपर जो स्केल है वो कैसे? प्लेकॉइड एंड बैकवर्डली डायरेक्टेड. ये जो स्केल है वो बैकवर्डली डायरेक्टेड है, इसलिए कभी शार्क को पकड़ोगे तो आपको हाथ को लगेगा, चुभेगा. रीज़न क्या है? जो प्लेकॉइड स्केल है जो रफ रहते हैं and they are backwardly directed. Okay, now in the shark
इन दिस कॉन्ट्रीचिड्स जॉ आर वेरी पावरफुल, इसका जॉ जो है वेरी पावरफुल, इसलिए शार्क से डरना पड़ता है, क्योंकि शार्क एक बार चावा दिया तो आदमी की गैरेंटी कम हो जाती है, इतना उसका जॉ ज़बरदस्त पावरफुल रहता है. नाउ इन दिस शार्क, इन दिस कॉन्ट्रीचिड्स द एयर ब्लैडर इज एब्सेंट. इसमें एयर ब्लैडर नहीं रहते, फिशेस में मोस्टली एयर ब्लैडर रहते हैं, मगर कॉन्ट्रीचिड्स ये फिशेस में एयर ब्लैडर नहीं रहते, इसलिए दिस फिश हैव स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग. ये देखो अब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर है, इसलिए शार्क को बार बार सतह पे आना ज़रूरी पड़ता है. ओके, हार्ट इज़ अ 2 चेम्बर. हार्ट तो फिश में 2 चेम्बर ही रहता है. ओके, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल अलग रहता है. फर्टिलाइजेशन, इसका जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है एंड दे आर विविपेरस. शार्क विविपेरस है, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है, अंडे देती नहीं है. तो कॉन्ट्रीचिड्स से शार्क को सामने रख के हम लोग थोड़े डिस्टिंग्विश कैरेक्टर वापस रिपीट कर रहा हूँ. दे आर एक्सक्लूसिव मराइन, ये मराइन फिशेस है. सेकंड, माउथ जो है वो वेंट्रल साइड में नीचे की तरफ है, माउथ इज वेंट्रल साइड. नाउ वर्टिबल कॉलम, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एंड it notochord is present throughout the life and consists of vertebral column, and जो vertebral column है it is made up of cartilage. किससे बना है? cartilage bones. Okay, now 5 to 7 pairs of gills are present for the respiration. इसको gills कितने हैं? 5 to 7 pairs. most of the 7 pairs रहते हैं, मगर 5 to 7 pair के रेंज में आते हैं. 5 to 7 pairs scales means gills are present for the respiration. Now body is covered with the placoid scale which are backwardly directed. इसके ऊपर जो स्केल है वो कैसे है? प्लेकॉइड, इसलिए रफ बॉडी लगती है. ओके, नाउ इसका एक और डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ. जो टेल फिन है वो कैसा, देखो टेल फिन इज अनइक्वल लोब, आपको डायग्राम में दिख रहा है. टेल फिन इज अनइक्वल लोब, ये कॉन्ट्रीचिड्स को पहचानने की सबसे बड़ी खासियत है. एंड हैविंग 2 वेंट्रल फिन्स. वेंट्रल फिन कितने? 2 है. जो टेल फिन है वो कैसे है? अनइक्वल लोब. और ऊपर जो वेंट्रल साइड में जो फिन है दे आर 2 फिन्स. दिस आर द डिफरेंस. ये आप लोग शार्क को पहचानने का डिफरेंस है. ओके, नाउ दे आर फर्टिलाइजिंग कैसे? इसका इंटरनल है एंड दे आर विविपेरस, ये डायरेक्टली बच्चों को जन्म देता है. अभी हम लोग देखेंगे क्लास ऑस्ट्रिचिड्स. ऑस्ट्रिचिड्स में मैंने यहाँ पे एग्जांपल बोनी फिश का रखा है. दे आर मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर. मराइन में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं. ओके, बॉडी इज स्ट्रीमलाइन. बॉडी कैसे रहती है? बोट शेप रहती है, स्पिंडल शेप. एंड दे आर माउथ इज अ मोस्टली टर्मिनल. टर्मिनल में आगे की तरफ रहता है, माउथ इज टर्मिनल. इसका माउथ कैसे है? टर्मिनल. नाउ अभी गिल्स कितने? 3 to 4 पेयर्स. गिल्स कितने? 3 to 4 पेयर्स. एक्चुअली 4 पेयर्स रहते हैं या 3 पेयर्स रहते हैं, मगर शार्क में आप लोगों ने कॉन्ट्रीचिड्स में कितने का? 5 to 7 पेयर्स. इसके गिल्स भी कम है. ओके, स्किन इज कवर विथ साइक्लॉइड स्केल. इसकी जो स्किन के ऊपर जो स्केल है वो साइक्लॉइड है, इसलिए खौला बोलते हैं मराठी में उसको. ऐसे निकलते छिलके जैसे छोटे छोटे से, बिकॉज दे हैविंग अ साइक्लॉइड स्केल. एंड एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट. इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट रहता है. ओके, नाउ सेक्सेस आर सेपरेटेड. इसमें और डिफरेंस क्या है? जो टेल फिन है दे आर इक्वल लोब. टेल फिन कैसा है? इक्वल लोब. एंड ऑन द वेंट्रल साइड ओनली वेंट्रल सिंगल फिन इज प्रेजेंट. आप लोग शार्क के डायग्राम में देख सकते हो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिन, 2 वेंट्रल फिन है. यहाँ पे कितना दिख रहा है? सिर्फ सिंगल 1. ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड दे आर ओविपेरस. ओविपेरस मीन्स अंडे देते हैं. ओके, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड दे आर ओविपेरस. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच में फर्स्ट दे आर मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर. ओके, देयर मोस्ट माउथ इज अ टर्मिनल. माउथ कैसा है उसका? टर्मिनल. 4 पेयर्स ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट. कितने गिल्स? 4 पेयर्स. ओके, स्किन कवर विद द साइक्लॉइड स्केल. Tail fin are equal lobe. Ventral fin are single. Okay, sexes are separate. Fertilization is external. External fertilization means male और female gametes रिलीज करते हैं पानी में, बाद में वो पानी में अलग जाके फ्यूज होते हैं टू फॉर्म अ ज़ायगोट. एम्ब्रियो बनता है बाद में छोटे से. ओके, नाउ दे आर ओविपेरस. ये अंडे देते हैं.
and development is direct. So these are the class osteoids. So now in the next slide I will show the difference between chondrichids and osteoids. Chondrichids are called as a cartilaginous fish, while osteoids are called as a bony fish. Once again I will repeat, chondrichids are called as a cartilaginous fish, osteoids are called as a bony fish. तो फर्स्ट स्केल का डिफरेंस देखो. तो नाउ chondrichids having a placoid scale, cartilaginous जो फिश है उसको कैसे placoid scale, while bony fish having a cycloid scale. इसके स्केल कैसे cycloid टाइप. माउथ कैसा है वेंट्रल, माउथ कैसा है टर्मिनल. ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. टेल लोब कैसे देखो अनइक्वल है, यहाँ पे टेल लोब कैसे इक्वल है ऑस्ट्रिचिड्स में. गिल्स कितने हैं 5 to 7 पेयर और बोनी फिश में 4 पेयर. ओके. पोजीशन इन वाटर, फिन लोअर डेंसिटी, कार्टिलेजेस आर ऑयली लीवर, स्विम ब्लैडर. इसमें देखो यहाँ पे कार्टिलेजेस में ऑयली लीवर रहता है, यहाँ पे स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है. नाउ ऑस्मोरेगुलेशन ऑकर विद द यूरिया. ओके. रेक्टल ग्लैंड, यहाँ पे लेस सॉलिड गिल एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन कैसा है थ्रू द गिल, यहाँ पे एक्सक्रीशन हो रहा है कार्टिलेजेस में. ओके. वो यूरिया एंड रेक्टल ग्लैंड से. दूसरा डिफरेंस देखो रिप्रोडक्शन में, देखो रिप्रोडक्शन इज इंटरनल, बोनी फिश में रिप्रोडक्शन कैसा है एक्सटर्नल. ओके. दूसरा कार्टिलेजियस बोन फिश कैसा है, दे आर विविपेरस एंड बोनी फिश आर ओविपेरस. ये डिफरेंस है कार्टिलेजियस एंड बोनी फिशेस में. सो वंस अगेन आई विल रिपीट ऑल दिस स्लाइड fast forward. So now in vertebrates having 2 division, agnatha and ganthostomata. तो एग्नाथा में हम लोगों ने साइक्लोस्टोमाटा देखा था, ये फिश लाइक एनिमल मगर फिश नहीं है. ओके. ये एक्टोपैरासाइट है. माउथ कैसे है, माउथ इज अ सर्कुलर है विदाउट जॉ एंड हैविंग 6 to 15 pairs of gills for the respiration. जो बोन्स है वर्टिबल कॉलम है वो कार्टिलेजेस से बना है. सो दीज आर द डिफरेंस. ओके. इसके ऊपर स्केल भी कुछ प्रेजेंट नहीं रहता है. ये हुआ आपका क्लास साइक्लोस्टोमाटा. तो हम लोग सेकंड देखे गैंथोस्टोमाटा. गैंथोस्टोमाटा में हम लोगों ने देखा गैंथोस्टोमाटा इंक्लूड 2 सुपर क्लास, पाइसेस एंड टेट्रापोडा. तो आज हम लोगों ने स्टडी किया पाइसेस. पाइसेस में 2 क्लास है, कॉन्ट्रिचिड्स एंड ऑस्ट्रिचिड्स. कॉन्ट्रिचिड्स का देखो डिफरेंस क्या है, दे आर एक्सक्लूसिव मराइन, वेरी फ्यू आर फ्रेश वाटर. माउथ कैसा है वेंट्रली है. वर्टिबल कॉलम इज मेड ऑफ कार्टिलेज. मेन डिफरेंस बता रहा हूँ आपको मैं. ओके. टेल बोन हैविंग अनइक्वल लोब, ओनली सिंगल 2 वेंट्रल fins are present for the locomotion. Okay. Jaw is very powerful. Absence of air bladder. Sexes are separate. Fertilization is internal and they are viviparous. Ostriches में they are marine as well as fresh water. Their mouth is mostly terminal. Mouth कैसा रहता है terminal. Having 4 pairs of gills. Skin is covered with cycloid scale. Air bladder is present. Okay. दूसरा tailbone, 10 fin are equal in lobe and the ventral fin is only single. Dorsal fin is only single type. So these are the difference and the fertilization is external and they are oviparous. So ये हुआ क्लास ऑस्ट्रिच का डिफरेंशिएट. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ओके. ये डिफरेंस मैंने बताया था कार्टिलेजिस एंड बोनी फिश में. ओके. नाउ थैंक यू, टेक केयर.